لا 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 اس گلشن ہستی پہ اللہ کی رحمت ہے. بچوں کی یہ دنیا، بچوں کی یہ دنیا چمکتی ہوئی آنکھوں سے جھلکتی ہوئی نصرت ہے. بچوں کی یہ دنیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہنستے چہروں اور مسکراتی ہوئی آنکھوں کو خالدہ اجمل کا سلام ہو. پیارے ناظرین اور پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ؟ خدا کرے جہاں بھی ہوں بالکل خیریت کے ساتھ ہوں. آج آپ ہمارے ساتھ دیکھ رہے ہیں بچوں کی دنیا کا وہ شو جسے ہم ہر رنگ، ہر خیال اور ہر مسکراہٹ کی چراغاں کرتے ہیں. بلکہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کی زندگیوں کی حقیقتوں کے ہم بہت قریب لے کر جائیں. تو پیارے بچوں، آج ہم بات کریں گے ان خوبصورت رنگوں کی جو ہماری زندگی کو روشن، دلکش اور خوشیوں سے بھر دیتے ہیں. کبھی ہم نے سوچا کہ اگر دنیا میں رنگ نہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ نہ نیلا آسمان، نہ سبز رنگ کے درخت، نہ سرخ گلاب، نہ رنگ برنگی تتلیاں، سب کچھ کالا سفید ہوتا تو کتنا بور ہوتی یہ دنیا. لیکن اگر ہم سوچیں تو ریئلائز کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کو رنگوں سے کیسے سجایا ہے، اور اس کو سجا کر ہمیں یہ پیغام دیا کہ زندگی تبھی خوبصورت لگتی ہے جب ہر جذبے، ہر احساس اور ہر تجربے کا رنگ شامل ہو. کیونکہ رنگ صرف آنکھوں کے لیے نہیں بلکہ دل کے لیے بھی ہوتا ہے. ماہرین کہتے ہیں ہر رنگ ہمارے جذبات کو متاثر کرتا ہے. کوئی محبت کا رنگ ہے، کوئی خلوص کا رنگ ہے، کوئی علم کا رنگ ہے اور کوئی خدمت کا. تو پیارے ناظرین، پیارے بچوں، آج کا ہمارا شو بہت پیارا ہے، بہت خوبصورت ٹاپک ہے، زندگی کی حقیقتوں سے بھرا ہوا ہے، اور وہ ہے کلرز آف لائف، دا ورلڈ آف جوائے. آج ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارے شو میں 3 ڈفرینٹ فیلڈس کی پرسنالٹیز موجود ہیں جو ہمیں بتائیں گے کہ زندگی کے سفر میں کچھ راستے دل کی روشنی دیتے ہیں، کچھ احساس جگاتے ہیں، اور کیسے علم، ہنر اور خوبصورت انسان کو ایک مکمل انسان بنا دیتے ہیں. آج ہمارے شو کی پہلی گیسٹ بیحد نالجیبل خاتون ہیں، اور وہ ہیں سجلہ. آپ ملیں گے سجلہ سے، وہ ہمیں بتائیں گی کہ اپنے فن اور تجربے سے اپنے اسٹوڈنٹ کی زندگی کو وہ کیسے رنگ بھرتی ہیں. آپ کو ان کی باتیں بہت اچھی لگیں گی، آپ انجوائے کریں گی. اور ہمارے شو کی اگلی گیسٹ ہر فن مولا ہے. یہ بڑھتی ہوئی آرٹسٹ ہے، بتائیں گی کہ کیسے اپنے ڈراموں اور آواز کے جادو کے ذریعے وہ کی وجہ سے پریشان حال لوگوں کے دلوں کو کیسے جیت دیتی ہیں، اور زندگی کے بے شمار رنگوں کو مزید کیسے خوبصورت بنانا سکھاتی ہیں. پھر آپ سنیں گے فیصل صاحب کی خوبصورت آواز کو. خدا تعالیٰ نے ان کو بے شمار خوشیوں سے نوازا ہے، بس بے شمار خوبیوں سے نوازا ہے، اور موسیقی کے احساس اور سروں سے وہ کیسے زندگی کو خوشیوں میں رنگ بھرتے ہیں. پھر آپ ملیں گے ہمارے بچوں کی دنیا کی ٹیم کے ساتھ، اور دیکھیں گے کہ بچوں کی دنیا کی ٹیم ایسے آپ کے لیے کیا پروگرام دیکھ رہی ہے. یقیناً آپ کو اچھا لگے گا ان کا پروگرام، ان کے سانگ، ان کا پروگرام. پھر آپ سنیں گے سانگ جو کہ میں نے لکھا ہے، گایا بھی ہے، اور ڈاکٹر علی نقوی صاحب نے اس کی دھن بنائی ہے. آپ کو یقیناً بہت اچھا لگے گا. آپ دیکھیں گے اپنی ویڈیوز کو. پیارے ناظرین اور پیارے بچوں، اپنے شو کا باقاعدہ آغاز ہم ہمیشہ کی طرح کلام الہی سے کرتے ہیں. شہرزاد اچھام آپ کے سامنے کلام الہی پیش کرتے ہیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة.
وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة جزاهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه صدق الله العظيم. माशाल्लाह शायरी बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। नाते रसूल मकबूल के लिए अलम सरकाम आपके सामने आती हैं। तेरे सदके में आका सारे जहां को दीन में ला बेदीनों ने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी कल्बी गैरुल्लाह नूर मुहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी कल्बी गैरुल्लाह नूर मुहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी कल्बी गैरुल्लाह नूर मुहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह। सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत ना, बहुत प्यारी आपने नात पढ़ी। और हमेशा की तरह मौसीकी जो है आज अरियान रज़ा से सुनेंगे। देखते हैं मौसीकी में जो क्या आपको सुनाते हैं। देखते हैं कि बच्चों की दुनिया की टीम जो है वो आज क्या प्रोग्राम लेकर आई है। फिर सॉन्ग सुनेंगे जो मैंने लिखा है आज के प्रोग्राम के हवाले के साथ। उसके बाद आप देखेंगे अपनी वीडियोस को और फिर एंजॉय करेंगे अपनी वीडियोस को। In a world of color bright and bold, a story of joy waiting to unfold. Red like passion, a fire within life's vibrant hues where dreams begin. Colors of life, a joyful array painting our world day by day. In every shade a new delight, in a world of joy shining so bright. Blue like the ocean, deep and vast, calming peace meant to last. Green like the meadows, fresh and new, nature's embrace forever true. In a world of colorful colors, bright and bold, a story of joy waiting to unfold. Red like passion, a fire within life's vibrant hues, where dreams begin. Colors of life, a joyful array, painting our world day by day. In every shade, a new delight, a world of joy shining so bright. Blue like the ocean, deep and vast, a calming peace meant to last. Green like the meadows, fresh and new, nature's embrace forever true. I just saw a symbol in the sky. It was really divine. It was beautiful and it was a rainbow. It was red, orange, yellow and green, blue and purple, also seen. Red, orange, yellow and green, blue and purple, also seen. It was beautiful, magical. It was a rainbow. Walk home and I don't feel so good. Today wasn't the day. I saw something that
rainbow in the sky. Assalamu alaikum, dear friends. I hope everybody's having an amazing school, an amazing day, an amazing studies and everything like that. I hope everyone is having an amazing time. And we really appreciate that everybody is watching our show. Everybody appreciates that you guys are watching and taking the time to watch Bachoo Ka Dunya. So we all really appreciate it. So I'm joining you all from a very, very beautiful place, which is Canada. And when there are maple leaves, it parts in the brightest red and gold colors. Maple leaves are majority red and gold colors, and they're so nice, so beautiful. It's exciting, and I welcome you all with another fun and amazing, cheerful episode of Bachoo Ka Dunya. We're also happy and we're ready for smiles, and we're very, very excited for this very special and amazing topic. Maha, can you please tell us the topic of our show today? And I'm Maha. Thank you, Gia. I can already feel the excitement in your voice. Today's topic will fill our world with color. The topic today is colors of life, a world of meaning. I can already feel the happiness in your voice. And you're right, today's video is going to make you feel happy and fill our world with color. And we're talking about colors of life, a full world of meaning. Ooh, that sounds like a very beautiful topic, Maha. I'm so excited for this topic. But wait, can you imagine if there were no colors at all? No blue or no yellow, no green, no pink, no red, none of those colors. Like no green trees or no red roses. Everything would just be black and white and gray. That would be such a dull and boring world, Gia. Colors makes us so happy and makes us feel so bright. They bring us happy memories and they bring messages to our heart. Exactly, Ma. Allah has blessed us with color. He has blessed our eyes to see color and the happiness of hearing color, because color is very important in this world. Yes, every color tells a story. Red for love, yellow for joy, blue for peace, and green for life. And today our amazing friends Anam, Shariar, Danielle, Zara, and Anaya are all going to join us today to explore what these colors really mean. So get ready, everyone, let's dive in for a colorful journey together. Because today we're going to discover many colors and what colors mean and how colors are very important to this world and how it brings happiness. Stay with us, the magic of colors is about to begin. Thank you for our team for joining us, Zara, Naya, Noor, Dani, Sherry, and Anam. Right now, Shariar, Danielle, and Anam will be here because everybody else is not here. Oh, and of course, Noor is also here. Noor, can you Hello, everybody. Anam, the color of knowledge and dreams, what is it? Wow, blue is the color of confidence and imagination. It tells us that there's no limit to what we do in this world and how our dreams, how we can dream in them. Hello everyone, my name is Anam and my favorite color is blue. My favorite color is blue because it's like it reminds me of the sky and the ocean. Beautiful, mesmerizing, satisfying, and very interesting. And they're both also very calming. And in my opinion, blue is the best color ever. Exactly, Anam. The sky teaches us to dream big and the ocean teaches us to stay humble while exploring new ideas. Noor, what's your favorite color? Pink. Why? Because You like it? Okay. always says, if you don't learn, success won't be close. Which is why I want to learn and be successful. Thumbs up.
Hi everybody, I'm Sherry Yar and my favorite color is yellow. It's yellow because of happiness and sunshine. There's a lot of things that is yellow, like the sun, plants, flowers, yeah. Guys, fun fact. The Prophet Muhammad, peace be upon him, said, your smile is for your brother's charity. Isn't that amazing? Happiness itself is an act of kindness, and everyone else gets very happy if you do it. Assalamu alaikum everyone. I am Daniel and my favorite color is red, the color of love and courage. That's such a warm choice. Red reminds us to love deeply, care for others, and saying what's right. And Daddy, love is not only about receiving, it's also about giving and sharing kindness with others. Exactly. Okay guys, now I will be talking about the color green. Now Zarin and I are not here, so we will be saying their colors on their behalf. Now, my name is Gia, and I'm going to tell you why I like the color green. Well, green is basically because it just reminds me of nature, trees, plants, lots of different types of animals, like species, ecosystems that have a lot of greenery, lots of grassy areas, which I really like. Also, it really also represents our earth as well, because our earth is also filled up with all green plants and everything like that. It's also peace and it has paradise. It just reminds us of paradise because green is such a light and great color. That's a wonderful choice, Gia. In the Quran, paradise is described as a place with green gardens and peaceful beauty. Well, sure, Yard, that's a great question. I go outside and sit under a tree under the grass, and I see the greenery, and it makes me feel calm and makes me feel thankful. That's a very good idea. Thank you. That's such a healthy idea. Green really brings peace to our hearts. It really does. Thank you. My favorite color is purple because purple is the color of creativity and imagination. And when I paint stories or make up stories, I feel like the whole world turns into a rainbow. And also my favorite color is yellow as well, but I only had purple clothes, so I have to wear purple clothes. But I love yellow too. Yellow is my number one and purple is number two. Exactly. Rainbow teaches us that the world can come together and become truly beautiful when all the colors come together, just like all of us. Well, sure, Yard, that's a great question. I go outside and sit under a tree under the grass, and I see the greenery, and it makes me feel calm and makes me feel thankful. That's a very good idea. Thank you. Happiness, Shariar spreads peace, Daniel spreads knowledge, Zara shares love, and Anaya brings imagination. Then together we can create a world full of joy. Red for love, green for tree, blue for sky and ocean breeze, yellow signs with shining tears, orange means an adventure near. Every color plays its part, painting joy inside my heart. I laugh, I'll dance, I'll sing with a twirl. This is my bright, colorful world. Red for love, green for trees, blue for sky and ocean breeze, yellow shine with shining tears, orange leaves adventure near. Every color plays its part, painting joy inside my heart. I laugh, I'll dance, I'll sing with a twirl. This is my bright, colorful world. ये जिंदगी है रंगों की कहानी, हंसी खुशबू प्यार की निशानी, हंसी खुशबू प्यार की निशानी, ये जिंदगी है रंगों की कहानी.
मौसम जैसे नया गीत, हर मौसम जैसे नया गीत, बच्चों मिल कर गाए रीत, बच्चों मिल कर गाए प्रीत। बादलों में छुपी है हंसी की बात, हवा बोली हम सब है साथ, हवा बोली हम सब है साथ। फूलों की तरह हम मुस्कराए, दिल से दिल तक खुशियाँ लाए। फूलों की तरह हम मुस्कराए, दिल से दिल तक खुशियाँ लाए। ला 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 ला। सूरज ने कहा उठो चमको, अंधेरों तुम भी सब दूर थमको, अंधेरों तुम भी सब दूर थमको। चांदनी बोली मत हो उदास, सुबह लाई है उम्मीद की आस, सुबह लाई है उम्मीद की आस। कदम कदम पर है खुशबू छाए, हर दिल में है प्यार जगाए। कदम कदम पर है खुशबू छाए, हर दिल में है प्यार जगाए। ला 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 ला। आओ बच्चों हम दुनिया सजाए, मोहब्बत के रंग हम मिलकर फैलाए, हम मिलकर गाए। नरमी हंसी और बातों में वफा, बस यही हो जिंदगी की सदा, बस यही हो जिंदगी की सदा। धूप हो या हो छाओ, हम साथ रहे रंगों को पहचाने, हम साथ रहे रंगों को पहचाने। धूप हो या हो छाओ, हम साथ रहे रंगों को पहचाने। प्यारे नाज़रीन और प्यारे बच्चों, आज का हमारा शो का टॉपिक बहुत खूबसूरत है और दिल को छू लेने वाला है। हम देखते हैं कि ये दुनिया एक खूबसूरत कैनवस की तरह है, जहाँ हर रंग एक एहसास है, एक जज्बा है और एक कहानी सुनाता है, और ये रंग मिलकर ज़िंदगी को खूबसूरत बनाते हैं। क्या कभी हमने ये सोचा कि अगर दुनिया में रंग ना होते तो क्या होता? ये नीला आसमान, ये सब्ज़ दरख्त, सुर्ख गुलाब, ये पीले सूरज की किरणें, कितनी सुनसान और कितनी बेएहसास होती है ये दुनिया। जब अल्लाह ताला ने ये दुनिया बनाई तो उसने इसे रंगों से सजा दिया। ये रंग सिर्फ आँखों के लिए ही नहीं बल्कि दिल के लिए भी है। हर रंग एक एहसास है, एक कहानी है और एक पैगाम है।
कुरान पाक में सूरत रूम में कि 22वीं आयत में अल्लाह ताला ने फरमाया, और जिसमें उन्हें रंगों का फ़लसफ़ा बताया कि अल्लाह ताला की तख्लीक इतनी खूबसूरती के साथ फरमाया और कहा कि इसकी निशानियों में से आसमानों और ज़मीन का बनाना है और तुम्हारी ज़ुबानों और तुम्हारे रंगों का इख्तिलाफ, यानी रंगों का फ़र्क भी अल्लाह ताला की कुदरत की निशानी है। अल्लाह ताला ने इंसानों, फूलों, परिंदों, पहाड़ों, आसमानों, हर शय का एक रंग दिया ताकि हम सोचें, समझें, इसका शुक्र अदा करें। रंग हमें सिखाते हैं कि ज़िंदगी एक बहुत ही खूबसूरती से बनती है, बल्कि ज़िंदगी के हसीन और खूबसूरत बनाने के लिए हमारे एहसासात, हमारे जज्बात और हमारे रवैयाजात रंग भरते हैं। माहिरीन नफ्सियात कहते हैं कि रंग इंसानों के जज्बात और सोच में गहरा असर डालते हैं। प्यारे नाज़रीन और प्यारे बच्चों, अब हम देखते हैं कि रंगों का इंसानी जज्बात के साथ क्या ताल्लुक़ है। आइए हम चंद रंगों के बारे में बात करते हैं। जैसे जर्द रंग खुशी और उम्मीद का रंग है, क्योंकि जर्द सूरत रोशनी, खुश मिजाजी और उम्मीद की अलामत है। ये रंग देखकर इंसान के दिल में तवन्नाई और खुशी पैदा होती है। सब्ज़ रंग सुकून, कुदरत, तरक्की का रंग है और इसे सुकून और ताजगी और तवाज़ुन जो है की अलामत है। ये इंसान के दिल को ठंडक और ज़हन को पुरसकून बनाता है। हरियाली से भरे हुए बागात रूह को सुकून देते हैं। ट्रैफिक की सब्ज़ बत्तियाँ हमें आगे बढ़ने का इशारा देती हैं। सुर्ख रंग मोहब्बत और हिम्मत का रंग है। सुर्ख रंग जज्बात, ताकत, मोहब्बत और बहादुरी की अलामत है। ये रंग हमें मजबूत बनाता है और दूसरों के लिए मोहब्बत पैदा करता है। ये वो रंग है जो हमें एहसास दिलाता है कि ज़िंदगी में जज्बा हो तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। जैसे सुर्ख गुलाब जो दोस्ती और मोहब्बत का एहसास समझा जाता है, क्योंकि मोहब्बत दिल का रंग है और सेहत इसकी ताकत है। नीला रंग इत्मीनान, अकल, सुकून, ख्याल का रंग समझा जाता है। आसमान जैसे नीला आसमान है, समुंदर का रंग है। ये रंग ज़हन को पुरसकून करते हैं, दिल को मुतमईन बनाते हैं। और नीला आसमान नीला आसमान हमें खूबसूरती बताता है, उसकी गहराई बताता है, उसे एहसास दिलाता है। ऐसे पुलिस और डॉक्टर्स के नीले यूनिफॉर्म खिदमत और ज़िम्मेदारी की अलामत समझे जाते हैं और हमें बताता है कि हमारी हदूद आसमान से भी ज़्यादा है। जामुनी रंग तख़य्युल, तख्लीक, इल्म और ख्वाबों की अलामत है। ये रंग हमें नई सोच, अपने ख़यालात का इज़हार करने की हिम्मत देता है। जैसे एक मुसव्विर, एक शायर जो दुनिया को अपनी सोच और अपने रंगों से सजाता है। शाम के वक्त जामुनी आसमान हैरत अंगेज़ नज़ारा पेश करते हैं और बच्चों की तस्वीर के अंदर ख्वाब दिखाई देते हैं। जैसा आइंस्टाइन ने कहा था कि तख्लीक वो अक्ल है जो मजाक कर रही है। नारंगी रंग तवानाई और जोश का रंग है। जर्द यानी खुशी, सुर्ख हिम्मत के मिलाप से मिलकर बनता है। ये रंग जोश और कुछ नया करने का जज्बा पैदा करता है। सफ़ेद रंग सच्चाई, अमन और सादगी की अलामत है। ये रंग हमें ताजगी देता है, उम्मीद दिलाता है और दुनिया का नया आगाज़ करने का हौसला देता है। जैसे बर्फ़ के सफ़ेद फूल सुकून देते हैं। मदर टेरेसा ने कहा था कि सफ़ेद कलर अमन की मुस्कुराहट है से शुरू होता है और काला रंग ताकत और वक़ार के लिए होता है। काले रंग की मजबूती, वक़ार और इत्मीनान की अलामत समझा जाता है। ये रंग हमें याद दिलाता है कि अंधेरा हमेशा बुराई नहीं होता, खुशी को नुमायाँ करता है। जैसे रात का आसमान, जैसे सितारे, रात के वक्त आसमान में सितारे चमकाते हैं। ये बच्चों की ग्रेजुएशन में आपने देखा हो कि आमतौर पर बच्चे जो हैं ब्लैक कपड़े पहनते हैं, उसका मतलब भी यही है कि उनकी इस ग्रेजुएशन में उनकी कामयाबी की अलामत है। रात का जितनी गहरी होती है, सितारे उतने ही चमकते हैं। इसे मुश्किल ज़िंदगी को स्याह रंग से ना हमें तरदीद नहीं करना चाहिए। प्यारे नाज़रीन और प्यारे बच्चों, इंसान खुद एक चलता फिरता रंग है का मजमूआ है। किसी के अंदर मोहब्बत का रंग, किसी के अंदर इल्म का रंग और किसी के अंदर हमदर्दी और किसी के अंदर फ़न का रंग है। डॉक्टर अब्दुल सलाम ने कहा था कि इल्म का रंग इख्तियार किया
اور فرمایا کہ علم روشنی کے بغیر کوئی بھی رنگ وجود میں نہیں آتا. جیسے ملکہ ترنم نورجہاں نے فن کا رنگ اپنایا اور ان کے گیت آج بھی دلوں کو رنگین کر دیتے ہیں. اور پیارے ناظرین، اگر ہم اپنے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو دیکھیں تو وہ تمام رنگوں کا امتزاج ہیں، یعنی رحم دلی، عدل، انصاف، صبر اور محبت. یہ سب ان کی زندگی کے رنگ ہیں. ایسے ناظرین، سائنس کہتی ہے کہ رنگ اصل میں روشنی کا کھیل ہے. بادل جب سفید روشنی کا یا شیشے سے گزر کر ٹوٹتے ہیں تو 7 رنگ بکھر جاتے ہیں، جس کو رینبو کہتی ہیں. اور ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ جب روشنی بکھرتی ہے تو رنگ پیدا ہوتے ہیں. کبھی کبھی اندھیرے، غم، ناکامی کے رنگ بھی آتے ہیں. 4 رنگ کا بالکل یہ مطلب نہیں ہے، ان رنگوں کا یہ بالکل مطلب نہیں ہے کہ روشنی ختم ہو گئی، بلکہ یہ ہے کہ روشنی کے آنے کا انتظار ہے، یعنی بلیک کلر. ہمیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. جیسے رات کے بعد دن کا آنا ضروری ہے، اسی طرح ہی اپنے ہر روزمرہ کی زندگی میں اگر ہم رنگوں کو اپنائیں تو وہ ہے محبت کا رنگ، ہماری پازیٹیو سوچ، ایمان کا رنگ، نماز اور دعا سے دل کو روشن کرنا اور اس کو برداشت کرنا. رنگ دوسروں کو غلطیوں کو معاف کر دینے کا نام ہے. علم کا رنگ ختم نہیں ہوتا اور زندگی کی سب سے خوبصورت تصویر وہ ہے جس کے رنگ ہم خود چنتے ہیں. تو ناظرین، یہ دنیا ایک بہت بڑی پینٹنگ ہے اور ہم سب اس کے رنگ ہیں. اگر ہم اس کے رنگ مان پڑ گئے اور تصویر ادھوری رکھتی ہے. اس لیے ایک دوسرے کی محبت اور خوشی کو بانٹنا بے حد ضروری ہے جب ہم دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں. تو اصل میں اپنی زندگی میں اور اپنی دنیا میں ان کے رنگ بھرتے ہیں. جیسے کہ میری ایک نظم کے چند اشعار ہیں کہ اس جیون کا ہر موسم ہے کوس و قضا، آؤ مل کر سمیٹے ہم خوشیوں کی فضا. ہر دل میں رہے انسانیت کی ساتھ، ہر روز بنے خوشیوں کی رات، چلیں ساتھ نہ ہو کوئی فاصلہ، محبت کا بس رہی یہی سلسلہ. اگر آپ کو دبئی یا مڈل ایسٹ نما زیورات کی تلاش ہے تو آپ کو دور جانے کی بالکل ضرورت نہیں. آج ہی ہمارے مسیساگا رچ وے اسٹور تشریف لائیے. الکرم جیولرز. ہمارے پاس سونے کے بہترین کنگن، کڑے، جھمکے، ہار اور سونے کے سیٹس بھی دستیاب ہیں. شادی ہو یا مہندی یا کوئی بھی فنکشن، آپ کی پسند کے تمام زیورات آپ کو ہمارے اسٹور میں موجود ملیں گے. آج ہی ہمارے اسٹور پہ تشریف لائیے. الکرم جیولرز، 3465 پلاٹنم ڈرائیو، یونٹ 99، مسیساگا. یا پھر کال کریں 905-828-0009. الکرم جیولرز، فرمائش آپ کی، گارنٹی ہماری. Middle of a heat wave or a cold snap and your system taps out? Don't panic. One Touch HVAC is just a call away. Fast, friendly, and always ready, day or night. From quick fixes. Legal problems don't wait, and neither should you. I'm Rohit Sharma. Whether you are facing criminal charges, buying your first home, or protecting your family, I'm here to help you. When your future is on the line, experience matters. At Rohit Sharma Law, we deliver results with clarity and care. At Rohit Sharma Law, we specialize in a wide range of legal services, including family law, criminal defense, real estate transactions, immigration matters, civil litigation, and notary public services. Book a consultation today. Let's take the next step together. You can call us at 416-741-1115 or email us at info
at rohitlaw.ca. Experience the authentic flavors of South India at Saravana Bhavan. From our kitchen to your table, savor a taste of tradition. Fresh, flavorful, and 100% vegetarian. Join us at Saravana Bhavan, where every meal is a celebration. डिक्सी इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस, जहां आपकी तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस की जरूरियात पूरी होंगी। हमारे पास आपको हर टॉप ब्रांड मौजूद मिलेगा, चाहे वो वर्लपूल हो या LG, सैमसंग हो या जनरल इलेक्ट्रिक्स। हम इन सब के ऑथराइज्ड डीलर हैं। आइए और हमसे 5 स्टार खिदमत का लुत्फ उठाइए। हम आपको तमाम अप्लायंसेस सबसे बेहतर और सस्ते दामों पर फराहम करेंगे, ये हमारी गारंटी है। Visit our website www.dixieelectronics.ca या फिर हमें कॉल कीजिए 905-625-5900. At Dixie Electronics and Appliances, we sell quality and deliver confidence. प्यारे नाज़रीन और प्यारे बच्चों, आज का शो कलर्स ऑफ लाइफ, द वर्ल्ड फुल ऑफ जॉय में आप 3 बहुत ही प्यारी पर्सनैलिटीज से मिलेंगी जो अपने अपने फील्ड में बड़ी कमांड रखते हैं। हमारे शो की पहली गेस्ट बहुत प्यारी पर्सनैलिटी है जो इल्म और मोहब्बत की रोशनी में समझती हूँ है, वो है मोहतरमा सजला। बहुत हमदर्द, बहुत हेल्पफुल, बड़ी कोऑपरेटिव। इसकी कोई मिसाल नहीं है, मेरे से पूछे तो 6 साल से जो ये मेरे साथ मेरी हेल्प कर रही है और मेरी थैंकफुल है। एक बहुत ऑनरेबल टीचर, एक प्रिंसिपल और एक ब्रैम्पटन के स्कूल की CEO। इतना कुछ होने के बावजूद भी ये इतनी हमदर्द है, इतनी हेल्पफुल है कि आपको बता नहीं सकती। और मैं इसका बार बार हर दफ़ा मुझे इसका, जब छोटी सी मुझे कोई परेशानी आती है, छोटी सी मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, तो ये मेरी सबसे पहले हेल्प के लिए खड़ी होती है। और आपको पता है कितने मुश्किल सब्जेक्ट में इसने, ये मास्टर है मैथ और फिजिक्स, इतने खुश्क वसूलों में इसने, इसके बावजूद इसने अपने बच्चों को बड़ी मोहब्बत के साथ, बड़े प्यार के साथ, बड़े खलूस के साथ जोड़ा हुआ है। वो उनके ख्वाबों में रंग भरती है। इनका स्कूल एक ऐसी जगह है जहाँ हर बच्चा अपनी अपनी सलाहियतों को रोशन करता है और उनका हर ख्याल एक नया रंग लाता है। और उनका हर सवाल के जवाब के साथ बच्चों के ज़हनों को वो रोशनी पैदा करती है। और सजला के मुताबिक इल्म सिर्फ किताबों तक महदूद नहीं है, बल्कि ये दिल और दिमाग दोनों को रोशन करता है और बच्चों के ज़हनों में जोश और खुशी पैदा करता है। वो न सिर्फ फार्मूला बल्कि थ्योरी भी समझाता है। इसके अलावा बच्चों के सोचने, समझने और खुश रहने की सलाहियत भी इनके अंदर पैदा करता है। आज सजला हमें बताएंगी कि वो किस तरह के रंग अपने बच्चों में भरती हैं, तो आपको उनकी बातें बहुत अच्छी लगेंगी। और सजला, मैंने चंद अशार आपके लिखे हैं, आपको अच्छे लगेंगे। रंगों की ये दुनिया है बड़ी प्यारी, इल्म और खुशी से भरी है भारी। मैथ के मसले और फिजिक्स के राज सजीला सुलझाए बड़े प्यार के साथ। थैंक यू। हमारे शो के दूसरी गेस्ट बहुत मल्टी टैलेंटेड इंसान है, एक उभरती हुई आर्टिस्ट, फन की दुनिया में ख़ास मुकाम रखने वाली। कभी ये डायरेक्टर है, कभी ये टीचर है और कभी ये बाकमाल आर्टिस्ट है। समझ नहीं आती कि अल्लाह ताला ने इसे इतनी सारी खूबियों से क्यों नवाज दिया है, और वो हमारी है अनिला ज़ारा। शुक्रिया। माशाल्लाह, इसके अलावा इसमें अनिला में बेशुमार ऐसी खूबियाँ हैं कि इसके अंदर जो एक पॉजिटिव एनर्जी मैं देखती हूँ ना, ये किसी किसी इंसान के अंदर होती है। ये वो आर्टिस्ट है जिसने मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स में अपनी फ़नकाराना सलाहियतों को मनवाया और उन्होंने बेशुमार फैमिली ड्रामे किए, जिसमें से रंगरेज़ा और मेड ऑफ कनाडा जो है वो बहुत मशहूर हुआ। और इसके अलावा जो पिछले दिनों एक ड्रामा बहुत मशहूर हुआ,
اور وہ زہرا نے حالیہ اس ڈرامے کی پرفارمنس جو ہے اس تھیٹر میں کی ہے اور اس کا نام دستک تھا. آپ یقین کریں گے وہ میں نے ڈرامہ 2 دفعہ دیکھا اور بہت اچھا لگا. اور اس کا جو تھیم جو تھا وہ ہمارے بہت پرانے آرٹسٹ ہیں محمود صاحب, انہوں نے لکھا ہوا تھا, لیکن دیٹ واز ویری گڈ تھیم اس ڈرامے کا. اس میں یہ ڈرامہ جو ہے وہ 3 دن تک تو ڈکسی کے جو ہے وہ تھیٹر میں لگا, مساگا کا جو ہے, اور 1 دن جو ہے وہ ملٹن میں اس کو دکھایا گیا. یہ ڈرامہ پاکستان کے مشہور جو آرٹسٹ ہیں انہوں نے اتنا پیارے طریقے سے لکھا ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ اس کی جو تھیم جو تھا نا اس میں ایک ڈیپتھ تھی. اور آپ دیکھیں گے کہ اس میں جو انیلا کا پارٹ تھا لمبا تھا, بڑا اٹریکٹیو تھا, اور اس نے اپنے اداکاری کی ایک نئی مثال قائم کی اس اپنے پارٹ میں. دیٹ واز ویری گڈ. بہت شکریہ, بہت شکریہ. اور جو کہ 4 روز تک یہ ڈرامہ چلا, اور اس ڈرامے میں انیلا نے جو اتنی خوبصورت جو مثالیں قائم کی ہے, اتنی اٹریکٹیو اپنی پرسنالٹی کی. ایک ٹیچر واقعی ایکٹر ہوتا ہے. اب میں نے سمجھا کہ ٹیچر ایکٹر نہ ہو تو گزارا نہیں ہوتا. اور انیلا میرے بچوں کی دنیا کی ٹیم اور میں آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں میرے ہی اس شعر کے ساتھ. فن ہے روح کی زبان دل کی صدا, فن ہے روح کی زبان دل کی صدا, یہی سے بنتی ہے دنیا کی ادا. زہرا کے چمکتے ہوئے خواب امید جگائیں, یہ اپنے آر سے ہر دل میں روشنی پھیلائے. اور یہ ہماری انیلا زہرا ہے. اب ہم ملتے ہیں ایک بہت ہی جینیس پرسنالٹی کے ساتھ جس نے آرٹ اور ٹیکنالوجی کی دنیا میں کمال حاصل کیا, اور وہ ہے GTA کی خوبصورت آواز, اور آواز ہے فیصل کی. اللہ تعالیٰ نے فیصل کو بھی ملٹی ٹیلنٹڈ بنایا. کبھی یہ ٹیکنالوجی میں اتنا ماہر ہے اور کبھی یہ آرٹ میں اتنا ماہر ہے. یہ آج کل ماشاءاللہ سے کمپیوٹر انجینئر کے طور پر فائنینشیل انسٹیٹیوشن میں ایز نائب صدر کے اپنی سروسز دے رہا ہے نا. اور لیکن جو سب سے پیاری بات جو فیصل کی ہے اس کا اثر عشق اس کی موسیقی کے ساتھ ہے, جو ایک کلاسیکل سنگر بھی ہے, ٹریننگ سنگر ہے. اور فیصل نے پاکستان میں جو ہمارے بہت ہی منجے ہوئے کلاکار اور موسیقار جو تھے, محترم نثار بزمی صاحب, سہیل رانا صاحب اور نیرہ نور سے ٹریننگ انہوں نے حاصل کی. فیصل صاحب کا اپنا جو ہے اس نے اپنا بینڈ بنایا, اور 2007 میں US میں اس نے جو بینڈ بنایا اس کا نام اس نے احساس رکھا. احساس کیا ہے یہ میں آپ کو بتاتی ہوں. اس کو نے تو جو بنایا, جو میرے مطلب ذہن میں ہے وہ یہ ہے کہ اس نے پہلے تو میں یہ بات کہوں کہ جب اس نے یہ احساس اپنا بینڈ بنایا تو اس کے بعد اس نے اس کو انٹروڈیوس کرایا نارتھ امریکہ میں, اور اس کے مختلف سٹیز میں جا کے پرفارمنس دی, مختلف اسٹیٹس میں جا کے پرفارمنس دی, اور اس کی دلکش پرفارمنس سے لوگ بہت انجوائے لوگوں نے کیا, اور سننے والوں کے سے دل جیت لیا. اصل میں جو احساس جو ہے وہ ایک فیوژن آف فیلنگس ہے, یعنی 2 چیزوں کا کمبائن, یعنی روایتی موسیقی اور جدید دھنوں کا ایک امتزاج ہے. تو کتنی بڑی بات ہے کہ آپ نے اتنی ماشاءاللہ چیز سیکھی ہے. ہمیں آج فیصل جو ہے اپنے آواز سے محسوس کریں گے, اور فیصل آج بچوں کی دنیا کی ٹیم اور میں آپ کے سروں کو اور آپ کے دھنوں کو دیکھیں گے آپ کس طرح کرتے ہو. میرے اس شعر کے ساتھ ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں. آج بچوں کی دنیا میں صدا ایک نئی لے کر آئے ہیں. آج بچوں کی دنیا میں ہم صدا ایک نئی لے کر آئے ہیں. فقط سر کی کہانی کوئی گہری لائے ہیں. آئے ہیں وہ جن کے سروں سے رنگ بدل جائیں. خوش آمدید احساس کی دنیا سے فیصل آئے. تھینک یو. اور یہ تھا ہمارے گیسٹ کا تعارف, اور میں کیونکہ ہمیشہ چاہتی ہوں کہ اپنے گیسٹ کا تعارف پوری طرح کراؤں تاکہ جو انسان ہمارے پروگرام میں شامل ہو رہے ہیں اس کے لیے وہ میرے لیے بہت بڑا آنریبل انسان ہے.
क्योंकि वो मेरे लिए चल के आता है प्रोग्राम के लिए बगैर किसी मुआवजे के, सिर्फ वो वॉलंटियर काम करता है। और ये एक छोटी सी मेरी तरफ से एक हदिया इनके लिए होता है। तो अब चलते हैं उनके साथ सवालों के साथ, अब एंजॉय करेंगे उनके सवाल। अब देखते हैं, सबसे पहले हम नीला की तरफ जाते हैं, सजीला की तरफ जाती है। सजीला, आप बताएं कि तालीम और तख्लीक की सलाहियतों में बच्चों की ज़िंदगी में रंग और खुशी कैसे लाते हैं? जब बच्चे डिसिप्लिन से बड़े होते हैं ना, तो हर चीज उनको बड़ी इजी हो जाती है। दे नो हाउ टू प्रोसीड इट एक्चुअली। फर्स्ट स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप क्या है। तो कलर है ना, अपने आप फील होते हैं, खुशियाँ आती है, सक्सेस आता है बच्चों के लिए। सक्सेस में जब सक्सेस आता है, दे गेट हैप्पी, और फिर पेरेंट्स भी हैप्पी होते हैं। बिल्कुल। तो खुशियों के कलर ही डिफरेंट होते हैं। बिल्कुल सही बात है। हाँ। तो बच्चों की सक्सेस में पेरेंट्स की खुशियाँ है, फैमिली की खुशियाँ है। बिल्कुल। ये कलर जो है लाइफ है। और रीना, आपके लिए कैसे है कि फन और इजहार हमारी जिंदगियों के रंगों और जज्बात में कैसे भर देती है? देखिए, अस्सलाम वालेकुम। आपका सबसे पहले तो मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि मेरे आपने इतना खूबसूरत इंट्रो करवाया, मेरे लिए इतना खूबसूरत शेर पढ़ा। उसके बाद आपका सवाल ये कि रंग कैसे भरते हैं। देखिए, फ़न की ही दुनिया है। अब तो दुनिया इतनी बदल चुकी है कि एवरीथिंग इज़ अ विजुअल प्रेजेंटेशन। सब कुछ अब दिखता है और जो दिख रहा है वही आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल सही। तो हम किस तरह से उसको अपनी ऑडियंस के सामने रखते हैं और उनको एक माशरे को शेप करते हैं, ये एक आर्टिस्ट का एक बड़ा अहम किरदार है। बड़ा सेंसिटिव और अहम, सेंसिटिव बहुत जी। क्योंकि आजकल जो नई जनरेशन है वो अपने घर में दादी नानियों, माँ बाप, रिश्तेदारों से ज़्यादा अब मीडिया से सीख रही है। तो मीडिया पे जो लोग आते हैं सामने, उनकी जिम्मेदारी अब बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो उनकी ज़िंदगियों में चाहे तो रंग भर दें या उनकी ज़िंदगियों से चाहे तो रंग छीन। बिल्कुल। तो फनकार अपने फन से उनको एक अच्छी रास्ते दिखा सकता है। जैसे कि अभी सजीला साहबा ने कहा कि सजला ने कहा कि रंग भर देते हैं अगर डिसिप्लिन के साथ ज़िंदगी को आगे बढ़ाएंगे। अगर हम एज अ फनकार एक अच्छी प्रेजेंटेशन उनके सामने रखेंगे तो उनकी लाइफ में एक बेहतरी आएगी, डिसिप्लिन आएगा। बिल्कुल सही है। अगर हम बेरारवी इनको दिखाएंगे, इधर भाग लो उधर भाग लो, अपने आप को कभी कुछ बना लो कभी कुछ बना लो, तो वो सीखेंगे। तो कलर्स जो हैं जिंदगी में अब तो मीडिया ही भर रहा है। सही कहते हो, बिल्कुल सही कहते हो। और फैसल, आपके पास एक क्वेश्चन है, क्या आपने कभी महसूस किया कि म्यूजिक के जरिए आपने दूसरों की जिंदगी में कैसी खुशियाँ पाई? सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, और बहुत शुक्रिया आपने मुझे मदऊ किया अपने प्रोग्राम में। और मैं डर रही थी बहुत बड़ा फैसल होगा, बहुत अच्छा लगा कि छोटा सा फैसल था। बस अब जैसा हूँ वैसे ही हूँ। आवाज़ बड़ी होनी चाहिए आर्टिस्ट की। वो तो ऐसे ही नाम से मैं कह रही हूँ। तो आपका सवाल का जवाब मैं कुछ इस तरह देना चाहूँगा कि देखिए, ये जो म्यूज़िक है इसकी खुशियाँ तो मेरे ख्याल से मैं बांटता ही रहता हूँ, और जब शोज़ होते हैं तो लोगों के चेहरे पे दिखती हैं वो चीज़ें मुझे, उनकी इन्वॉल्वमेंट से, उनके एटीट्यूड से, वो सारी चीज़ें। तो म्यूज़िक तो एक ज़रिया ही है बिल्कुल खुशियों को बांटने का और उनको शेयर करने का। और इसके ज़रिए जो है मुझे मौका मिलता है कि मैं लोगों को एक अच्छी इंटरटेनमेंट दे सकूं। और दूसरी बात ये है कि देखिए, हम जो मौसीकार, जो सिंगर्स जो होते हैं, वो मेरे ख्याल से शायद कुछ ऐसे लोगों में से होते हैं जिनकी ये ख्वाहिश होती है कि आपके यहाँ खुशियाँ आएँ। खुशियाँ आएंगी तो आप हमें बुलाएंगे, तभी हम आपके लिए शोज़ करेंगे। बिल्कुल सही कहते हो। जबकि अगर डॉक्टर है वो तो उसकी दुकान जब ही चलेगी जब कोई बीमार होगा, लॉयर की दुकान जब चलेगी जब कोई मुसीबत में होगा। तो हम तो दुआ करते हैं कि भाई आपके अच्छा हो, आप हमें बुलाएं और हम आपको एंटरटेन करें। बहुत प्यारी बात की है जो तुमने। अब सच आपके पास जाते हैं कि एक टीचर और सीईओ के तौर पर जिंदगी के रंग आप भरने का क्या मतलब है आपकी नज़र में? आपके स्कूल में आप कैसे वो चीज़ करती हैं? जब हर बच्चा सुबह आता है ना हमारे पास खलीफा जी, तो
वो एक दिन भर का ये लेके आता है कि मुझे दिन भर में क्या करना है, मैं स्कूल में जा रहा हूँ, मैं पढ़ाई करूँगा, मैं बोर हो जाऊँगा। सो जब हम उनको विजुअल प्रेजेंटेशन देते हैं, अनिला जी ने जैसे बोला वैसे, तो विजुअली व्हेन दे सी लाइक साइंस और हिस्ट्री ऐसे सब्जेक्ट, ज्योग्राफी, तो उनको अच्छे लगते हैं बिकॉज ब्रेन रिकॉग्नाइज देम वेरी वेल, ब्रेन रिमेम्बर्स आल्सो वेरी वेल। एंड बच्चों का दिन फटाफट से निकल जाता है, सेम टाइम बच्चों को खुशी होती है कि मैंने सीख लिया, आई डू रिमेम्बर। अगर हम सिर्फ उनको टेक्स्ट पढ़ के दिखाएं, उनको उतना अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा। सो जब बच्चा आता है तो मॉर्निंग मेलनकॉली लेके आता है एक्चुअली, कि मैं अभी उठा हूँ, मुझे स्कूल क्यों जाना है भाई। और जब वो विजुअली पढ़ते हैं, लेकिन जैसे वो एंटर होता है वो एकदम चेंज होता है। हाँ, है ना, उनको चाहिए कि अपने टीचर के, अपने सीईओ के, जो भी उनका हमारा सपोर्टिंग स्टाफ है, टीचिंग स्टाफ है, उनको वेलकम करें। वेलकम में भी वार्मनेस होता है, वार्मनेस में कलर्स होते हैं, राइट। सो उनको वो चाहिए। फिर आने के बाद जब पढ़ते हैं, खुशी खुशी दोपहर में आप देखोगे ना, कभी कभी टिफिन भी नहीं खाते, बट आराम से, उनको पता ही नहीं चलता कि उनको भूख लगी है या कुछ लगी है। दे आर हैप्पी, दे स्पेंड देयर टाइम प्रोडक्टिव, एंड दे आर गेटिंग लॉट ऑफ कलरफुल थिंग्स इन स्कूल, राइट। असल में मैं सोचती हूँ कि जो बच्चे जब स्कूल में एंटर होते हैं, एक टीचर की मुस्कुराहट बच्चे के लिए ना वो भी रंग है, बहुत इम्पोर्टेंट है। और बच्चा जब उसको देखता है अपनी तरफ कि वो इतना खुश हो कि मुझे देख रही है, मुस्कुरा रही है, तो वो खुद ब खुद ही वो बकअप हो जाता है, और खुद ब खुद उसके अंदर एक लाइट जो है वो आ जाती है। अब चलते हैं अनिला के पास। अनिला, आप बताएं कि ड्रामा हमारी जिंदगियों में रंग भरने में क्या किरदार अदा करता है? ड्रामा आजकल के तो देखिए पूरे इंस्टीट्यूट बन चुके हैं, यानी कि वो आपको जिंदगी कैसे गुजारनी है वो सब कुछ सिखा रहे हैं। बिल्कुल, चाहे वो सास बहू के ड्रामे हो या स्कूल गोइंग बच्चों के ड्रामे हो, कॉलेज में अफेयर्स चल रहे हों, काम के इश्यूज चल रहे हों, घरेलू मसाइल हों, शादियां हों, जीना हो मरना हो, अब तो ड्रामे ही हैं जो सिखा रहे हैं। इतना सिखा रहे हैं कि आप सोसाइटी में आपके राइट्स क्या हैं ये तक बता रहे हैं। गहरी छाप हो गई है ना बच्चों के, लोगों के ज़हन में, ओवरऑल सबको, पूरी हर किस्म की कौम को सिखा रहे हैं कि अगर आप एल्डरली हैं तो आपके राइट्स क्या हैं, आप इफ यू आर अ फीमेल आपके राइट्स क्या हैं, इस रिश्ते में आपको ये होता है। तो ड्रामे तो इस कदर सिखाने में आए हुए हैं कि उससे अच्छा इंस्टीट्यूट इस वक्त और कुछ मौजूद नहीं है जो कि इम्पैक्टफुल हो। तो बल्कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम एक अच्छा मीनिंगफुल कंटेंट, जैसे भी आपने जिक्र किया था इंट्रो में कि दस्तक का जो कंटेंट था, जो भी मैंने प्ले किया था थिएटर में, डिक्सी थिएटर में 3 दिन और फिर मिल्टन में, तो उसका कंटेंट स्ट्रॉन्ग था। इट वाज द मैसेज कि वो तमाम पेरेंट्स जो ओल्ड होम में रहते हैं, अपने फैमिलीज़ को छोड़ने के, ख़त्म अलग हो जाने के बाद, अपनी औलादों से अलग हो जाने के बाद, और उनकी एज भी इतनी होती है, तो वो किस किस्म के एहसासात से गुजरते हैं। तो ये प्रेजेंटेशन है, उससे जो देखने के लिए असल में ये बात है कि उस ड्रामे के वर्ड ही खूबसूरत हों और कैची हों, ताकि क्योंकि जो एक्टर है उसका तो कोई कसूर नहीं है, जो उसको मिला उसने तो वो बोलना है, लेकिन उसे प्ले कैसे करके बताना है, ये चीज़ असल है। देखिए डायरेक्शन और राइटिंग ये होनी चाहिए कमाल की। उसके बाद अगर डायरेक्शन तो बनेगी तब जब राइटिंग हो। बिल्कुल। अगर राइटिंग ही वो की जाए जिससे हमारे माशरे में सुधार पैदा हो, जिससे पॉजिटिविटी क्रिएट हो, तो माशरा पॉजिटिविटी की तरफ जाने लगता है। बिल्कुल। आपको कितने सारे ड्रामे हैं जिनकी एग्जांपल दी जा सकती है जिसमें इतना अच्छा एक कैरेक्टर दिखाया गया कि जिसने जिंदगी में कोई तब्दीली लेके आई, जिसको देखकर लोग उसके पीछे पीछे चले और उन्होंने अपनी लाइफ में एक पॉजिटिव तब्दीली लेके आए। इसी तरह अगर नेगेटिविटी दिखाएंगे तो नेगेटिविटी आने लगेगी। तो आजकल जो जिंदगी में मैं कहती हूँ अच्छे रंग हो, बुरे रंग हो, मीडिया के थ्रू ही भरे जा रहे हैं, और एज एन आर्टिस्ट ये हम लोगों की जिम्मेदारी है कि हम अच्छे कंटेंट्स को सिलेक्ट करें और उनको प्रेजेंट करें, क्योंकि लोग हम देखते हैं आर्टिस्ट को टीवी पर और फोन्स पे अब देखते हैं। इसी तरह से जो अच्छा लिखा जाएगा तो माशरा अच्छा बनेगा। ये सब चीजें जो है, थीम जो है इज वेरी इंपॉर्टेंट, और वर्डिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैट। कंटेंट आप क्या सिलेक्ट कर रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसका मुझे तो ऐसा लगता है कि
उसका भी जवाब देना पड़ेगा। देखिए आपके इस ड्रामे में असल बात तो वो खूबसूरत वर्ड थे जो कैची थे और बिल्कुल असर कर रहे थे तबीयत के ऊपर कि ये क्या बोल क्या रहे हैं, ये बात है। अब फैसल आपके पास चलते हैं कि फैसल हमारे बच्चों के लिए आपका क्या पैगाम है कि और क्या मैसेज है कि म्यूज़िक के ज़रिए वो कैसे खुशी हासिल करें। आपको देखते हैं बच्चे जा रहे होते हैं, कान में म्यूज़िक पकड़ा होता है तो जा रहे हैं, कर रहे हैं। देखिए म्यूज़िक is a hobby and it's also I would say कि lifestyle। अब उसमें बात यह है कि अगर आपकी लाइफ में म्यूज़िक आ जाए, बच्चों को ख़ास तौर पे मैं ये कहूँगा कि देखिए ये एक ऐसी हॉबी है कि अगर आपके दिल में आ गई और आपकी ज़िंदगी में शामिल हो गई तो आपकी ज़िंदगी भर आपके साथ रहेगी। और ये एक ऐसी चीज़ है जो आजकल देखें हालात ऐसे चल रहे हैं हमारे मुआशरे में कि डिप्रेशन उरूज पर है और बहुत सारी जो इंटरपर्सनल रिलेशंस हैं वो डिक्लाइन पे हैं, बहुत सारी चीज़ें। म्यूज़िक ऐसी चीज़ है जो आपको बहुत हेल्दी रखती है दिमागी तौर पे और आपको ऐसा रखती है कि आपको किसी की ज़रूरत नहीं रहेगी लाइफ में। अगर म्यूज़िक आ गई ना ज़िंदगी में तो आप सेल्फ सफिशिएंट हो जाते हो और फिर उसके बाद आपकी लाइफ में कौन है कौन नहीं है, क्या हो रहा है नहीं हो रहा, इट डजंट मैटर, क्योंकि वो एक ऐसी चीज़ है जो आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगी और हमेशा आपको सुख दुख हर सिचुएशन में आपका साथ देगी। तो मैं समझता हूँ कि म्यूज़िक अगर आ जाए ज़िंदगी में तो बड़ी खुशनसीबी और मैं अपने आप को भी बड़ा खुशनसीब समझता हूँ इस मामले में। बस इश्क हो जाता है ना, उस चीज़ के साथ प्यार हो जाता है कि भी हम अच्छी से अच्छी तरीके से और गा सकें। और फिर दूसरी ये होता है कि ये आपको बहुत सारी बुराइयों से दूर रखती है। बच्चे हैं, यंग इम्प्रेशनेबल माइंड्स होते हैं तो उनके लिए एक अच्छा है कि चलो एक क्रिएटिव क्यूरियोसिटी रहती है और आप उसमें इतना टाइम लगाते हो जो कि आप इधर उधर बेकार चीज़ों में लगा देते हो। तो ये है कि उसमें आपका एक आप क्रिएटिविटी भी कर रहे हो साथ में और उसके साथ जो आप कुछ अच्छा भी करो लाइफ के साथ। तो आई थिंक ओवर एंड ऑल मुझे लगता है कि ना सिर्फ कि ये खुशियाँ देती है बल्कि आपके स्ट्रेस लेवल को नीचे रखती है। जब स्ट्रेस नीचे रहेगा तो खुशियाँ ऑटोमेटिकली। बहुत प्यारी बात की आपने। सिलसिला अब आपके पास है कि आप अपने स्कूल की इन्वायरमेंट में डिसिप्लिन और खुशी के दरमियान कैसे तवाज़ुन कायम रखते हैं? हम आपको मैं ये वो बोलूँगी कि खालिदा जी हम बच्चों को कंस्ट्रक्टिव डिसिप्लिन सिखाएं कि व्हाई यू हैव टू डू इट। अच्छा, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये जो जनरेशन है ना ये क्यूरियस है। हम बोलेंगे कि ये करना है तो वो नहीं करेंगे, उनको हमें प्रैक्टिकली दिखाना पड़ता है ये क्या करना है और क्यों करना है। सो हम जब डिसिप्लिन करते हैं ना तो उनको दिखाते हैं कि अपने फूड यहाँ पे थ्रो किया, कल वो रोटन होगा, उसका स्मेल आएगा, बीमार पड़ोगे। जस्ट आई एम गिविंग यू एग्जांपल सिंपल। तो उससे अच्छा अगर हमने गार्बेज बिन में डाला तो चला जाएगा। देन गार्बेज बिन के तरफ गए तो आपको कौन सा रिसाइकल करना है, कौन सा ग्रीन बिन में जाएगा, कौन सा एक्चुअल गार्बेज में जाएगा, उसके भी वो रीजन पूछते हैं हमें। तो उधर भी कलर है, ब्लू ग्रीन ब्लैक बीन्स एंड ऑल। सो दैट्स द वे दे अंडरस्टैंड व्हाट इज इम्पोर्टेंट इन देयर लाइफ। बिल्कुल सही कहते हैं। सिंपल रिसाइकल बहुत कुछ सिखा के जाता है बच्चों को। बिल्कुल, एक घर की छोटी सी चीज़ है लेकिन इसके मीनिंग जो है बड़े गहरे हैं। बहुत बहुत खूबसूरत। अब चलती हैं अनिला आपके पास कि जब आप कोई ड्रामा नाज़रीन के सामने पेश करती हैं तो अपने आप को कैसे फील करती हैं? जब मैं किसी भी कैरेक्टर को पढ़ती हूँ तो मैं बस ये सोचना होता है कि एज एन आर्टिस्ट उस कैरेक्टर को महसूस करना और अब मुझे अपना आप पीछे करके उस कैरेक्टर को प्रेजेंट करना है और उसके लिए मैं बेहतरी करने की कोशिश करती हूँ कि अगर मैं नहीं होती तो ये जो किरदार है यही होता तो वो किस तरह से बोलता, वो कैसे उठता, कैसे बैठता और कैसे सोचता। जब मैं वो सोचने लगती हूँ तो मैं वो प्रेजेंट करने लगती हूँ। उस वक्त मैं लोगों के बारे में नहीं सोच रही होती कि देखने वाले क्या सोचेंगे। मेरा जो फोकस होता है वो ये होता है कि वो किरदार क्या सोचता है और वो किरदार क्या महसूस करता है और उसी किरदार की सोच को जब मैं उस तरह से उसकी फीलिंग्स के साथ फील करके आगे बोलती हूँ और जो डायलॉग्स हमें बताया जाता है उनको याद किया जाता है, उनको उस तरह से डिलीवर किया जाता है तो फिर मेरा ख्याल है उसमें एक जान आ जाती है और फिर नाज़रीन फिर मुझसे नहीं उस किरदार से कनेक्ट होता है।
बिल्कुल सही कहते हो, बिल्कुल सही कहते हो। अपने आप को जब तक आप उस किरदार के अंदर नहीं डालेंगे आप कुछ नहीं कर पाएंगे, वही फील करेंगे जो है। क्योंकि हाँ। आप तो मुझे सारा समझती हैं खुद आर्टिस्ट हैं एक आर्टिस्ट और आप तो बहुत सीनियर आर्टिस्ट हैं। आपका ये बहुत शुक्रिया, आपने इस बात को मुकम्मल किया। अच्छा, अब फैसल आप सब बेचैन हैं आपको सुनने के लिए, सुनाएं, क्या सुनाते हैं आज? वैसे तो देखें बच्चों का प्रोग्राम है, लेकिन इत्तेफाक है कि इस वक्त मेरे पास बच्चों के लिए कुछ ऐसा नहीं है, बट मैं एक आप लोगों को गज़ल सुना रहा हूँ जो कि बच्चों की अम्मियाँ भी हैं और फैमिलियाँ भी हैं, उनको भी वो भी एंजॉय करेंगी, आप सुनाएं। जी, मेरे उस्ताद जनाब निसार बज़मी साहब की कंपोजिशन है ये, जो कि मैं आप लोगों को सुना रहा हूँ। ये गज़ल जो कि काफ़ी मशहूर है और मेहदी हसन साहब ने इसको गाई है। अच्छा। तो 2 लाइनें मैं आपके लिए उसकी गज़ल की सुनाता हूँ। रंजिश सही, रंजिश सही, दिल ही दुखाने के लिए रंजिश सही, फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए रंजिश सही। किस को बताएंगे जुदाई का सबब हम, किस को बताएंगे जुदाई का सबब हम। तू मुझसे खफा है तो ज़माने के लिए रंजिश सही। बहुत खूबसूरत, थैंक यू, बहुत खूबसूरत, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, शाबाश। ऐसे लगा जैसे मैं किसी को सुन रही हूँ। बहुत शुक्रिया। नहीं, ये तो बहुत एजाज़ की बात है मेरे लिए। सलामत रहो, बहुत बहुत प्यारा। अब अगला क्वेश्चन मेरा, तो इसको तो ला दी हमारी आपने। वेरी टची। बहुत प्यारा पड़ा माशाल्लाह, बहुत प्यारी आवाज़ चश्मे बदूर। क्या आप अपने स्कूल की कोई कलरफुल इवेंट जो हमारे साथ शेयर करेंगे? श्योर। सितंबर का महीना होता है, सितंबर का महीना होता है ना, तो टेरीफॉक्स फाउंडेशन का हम रन करते हैं। और सेम सितंबर के मंथ में एक्चुअली फर्स्ट नेशन की जो लड़की है जो गायब हुई है उनके बारे में होता है। ऑरेंज शर्ट डे बोलते हैं, दे आर वेरी सिमिलर। अच्छा। क्योंकि फाइटिंग अगेंस्ट द कैंसर, डेडली डिसीज, ओके, हमने फाइट अभी जीती नहीं है ना। अच्छा। तो बच्चों को वो फाइट करने की एक ताकत देते हैं। सो उस समय हम बच्चों को बोलते हैं कि ऑरेंज शर्ट पहन के दौड़ो। सो एक कैंसर है और एक सोसाइटी का प्रॉब्लम है, एक मीन्स बीमारी है, दूसरी सोसाइटी की बीमारी है। सो हम बच्चों को ऑरेंज कलर में एक्चुअली टॉलरेंस सिखाते हैं, एक्सेप्टेंस सिखाते हैं, that is always beginning of the year. So स्कूल जब शुरू होता है तो ही ये लेसन मिलता है हर साल। So हमारे बच्चे बड़ा फंड रेज करते हैं, $1000 तक हमने फंड रेज किया है 2 घंटे के रन में। हमारे बच्चे बड़े अच्छे बच्चे हैं। आप जो अच्छे हो तो सारे बच्चे भी तो अच्छे ही होने, वैसे ही होने। अब चलते हैं अनिला के पास। अनिला,
उन बच्चों के लिए आपका क्या मशवरा होगा कि जो फन के ज़रिए अपने आप को ज़ाहिर करना चाहते हैं? आजकल जो हमारी यूथ है उस पे तो बेतहाशा जिम्मेदारी है, क्योंकि बहुत तब्दीली आ चुकी है। तब्दीली इस तरह से कि पहले जो सोच थी लोगों की कि बिल्कुल ही मुख्तलिफ किस्म के लोगों को रिगार्ड किया जाता था, अपना हीरो और अपना मेंटर माना जाता था, लेकिन आजकल जो हीरोज़ हैं, मेंटर्स हैं, वो हैं जो सोशल मीडिया पे छाए हुए हैं। तो जो यंगस्टर्स सोशल मीडिया पे आना चाहते हैं और जो आते हैं, उनकी जिम्मेदारियां जो उनसे सीनियर्स हैं उनसे ज़्यादा इसलिए बढ़ जाती हैं क्योंकि उनके फॉलोअर्स अब ज़्यादा हैं। उनको अगर वो रैप म्यूज़िक करेंगे तो उनको जो फॉलो कर रहे हैं बच्चे वो रैप करने लगेंगे, वो जो कुछ करेंगे उनको ही फॉलो किया जाएगा। तो आजकल बच्चों के लिए तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वो जब भी आर्ट को, किसी भी किस्म के आर्ट को अपनाते हैं तो उसमें एक पॉजिटिविटी देखें। वैसे मैंने ये देखा है कि आजकल की यूथ बहुत क्लीन है, वो पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ते हैं, उनमें ग्रीड कम है, बिल्कुल ग्रीड बहुत ग्रीड कम है ना। और ये भी नहीं है कि मेरे पास ये घर हो, मेरे पास ये गाड़ियाँ हो, ये चीज़ें हो, उनको वो नहीं है, उनकी अपनी बेसिक नीड्स पूरी हो, दे आर हैप्पी विद दैट। तो वो उस चीज़ को अगर अपने कंटेंट में अगर वो ये शामिल कर लें, थोड़ा सा ये और सोच कर कि वो किस किस्म का मैसेज दे रहे हैं और किस किस्म के उनके फॉलोअर्स क्रिएट हो रहे हैं। अगर वो फॉर एग्जांपल योगा को पसंद करते हैं और कामनेस को पसंद करते हैं, वो उसी को प्रेजेंट कर रहे हैं। अगर वो म्यूज़िक को पसंद करते हैं, वो डांस को पसंद करते हैं, तो वो उसको प्रेजेंट कर रहे हैं। अगर वो पॉलिटिक्स को पसंद कर रहे हैं तो वो उसको प्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि आजकल की यूथ ही है जिसको सुना जाता है और जिसको फॉलो किया जाता है। और अब तो क्या कहा जाए कि अभी जो न्यूयॉर्क के मेयर हैं वो भी टिकटॉकर ही थे जी, वो भी टिकटॉकर थे। वो उनकी अपनी इतनी बड़ी फ़ैन फॉलोइंग थी। मैं पॉलिटिक्स पे बात नहीं करती, लेकिन कहने का मकसद है कि यूथ जो आजकल प्रेजेंट कर रही है उसको फॉलो किया जा रहा है। तो क्या आप बात कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल करेक्ट, असल चीज़ बात है जी, सही बात है। ऐसा ही सोचें अगर बच्चे, तो मेरा ख्याल है कि बच्चे भी उस लेवल पे भी आ नहीं सकते। हाँ, सीखते सीखते पहुंच जाएंगे, बहुत तेज है। हाँ, बहुत समझदार हैं। हम लोगों का समझ जहाँ ख़त्म होती है ना, वहाँ से उनकी बिस्मिल्लाह होती है। सही कहते हो, बिल्कुल सही। दे आर वेरी स्मार्ट। आजकल का यूथ बहुत स्मार्ट है। आपके पास आज एक और अच्छा सा सॉन्ग सुना दो जो भी आप सुनाना चाहते हैं। पहले तो आपने में बहुत रुला दिया। नहीं, वैसे बस एक बात और ऐड करना चाहूँगी बच्चों के ऊपर। फैसल भाई के बच्चों से मिली हुई हूँ मैं, बेटी से भी और छोटे बेटे से भी। वो फैसल भाई से भी ज़्यादा टैलेंट है। जी हाँ, उसको मैं बुलाऊंगी, किसी बुलाऊंगी। आप दोनों बच्चों को बुलाइएगा। इनके बेटी माशाल्लाह इतना अच्छा गाना गाती है और छोटा बेटा है वो बहुत प्यारा गाता है माशाल्लाह। फर्स्ट वैक्सीनेशन वाज म्यूजिक। हाँ जी, वो बस वो ऐसा स्ट्रॉन्ग डीएनए है कि वो शामिल हो गया उनके ब्लड में माशाल्लाह से। जैसा बाप वैसी जी, ये कहने का मकसद ये कि आजकल की यूथ बहुत स्मार्ट है। बिल्कुल सही कहा। और फैसल भाई ने जितने सालों में सीखा, उन्होंने उसको कई मतलब 4-5 पे डिवाइड करके जल्दी सीख लिया। हाँ जी, ये बात करना चाह रहे हैं। देखिए, कुछ टैलेंट होते हैं जो बच्चे दे आर बोर्न विद इट। हमारा काम है कि उनको इनकरेज करें उन चीज़ों में, और अगर आप करें तो उनके लिए बहुत बेहतर होता है। हाँ, बच्चों को कितने टैलेंट जो है हम निकाल सकते हैं अगर उनको वाकई वो जिस तरह के उनको इनकरेजमेंट चाहिए अगर हम दें तो। ठीक कहते हो। चलें फैसल, मैं एक और आपको एक अच्छा सा सुनाना जैसे पहले सुनाया। साहिल पे खड़े हो तुम्हें क्या हम चले जाना, साहिल पे खड़े हो तुम्हें क्या हम चले जाना, मैं डूब रहा डूबा तो नहीं हूँ, मैं डूब रहा हूँ
نہیں ہوں اے وعدہ فراموش میں تجھ سا تو نہیں ہوں ہر ظلم تیرا یاد ہے بھولا تو نہیں ہوں اے وعدہ فراموش میں تجھ سا تو نہیں ہوں ہر ظلم. بہت خوبصورت. تھینک یو. بہت خوبصورت. بہت ماشاء اللہ. بہت تھینک یو سو مچ فار کمنگ. سجلا آپ کا بہت میں شکر گزار ہوں، انیلا آپ کی بھی اور فیصل آپ کی بھی کہ آپ لوگ آئے اور آپ نے اس رنگ بھر دیا میری اس بچوں کی دنیا کے پروگرام میں. آپ کا بہت شکر گزار ہوں. باقی بہت اچھا ہے کہ آ کے اتنا والنٹری کام کرنا اور اتنا محبت سے کرنا. یہ اللہ تعالیٰ اس کی جزا دے گا کیونکہ ہمارا مقصد صرف بچوں کو پازیٹیوٹی بچوں کو دینا ہے اور یہ کام اسی لیے ہم نے کر رہے ہیں. اور تھینک یو سو مچ فار کمنگ. اگر آپ کو دبئی یا مڈل ایسٹ نما زیورات کی تلاش ہے تو آپ کو دور جانے کی بالکل ضرورت نہیں. آج ہی ہمارے Mississauga Ridgeway اسٹور تشریف لائیے. الکرم جیولرز. ہمارے پاس سونے کے بہترین کنگن، کڑے، جھمکے، ہار اور سونے کے سیٹس بھی دستیاب ہیں. شادی ہو یا مہندی یا کوئی بھی فنکشن، آپ کی پسند کے تمام زیورات آپ کو ہمارے اسٹور میں موجود ملیں گے. آج ہی ہمارے اسٹور پہ تشریف لائیے. الکرم جیولرز، 3465 پلاٹنم ڈرائیو، یونٹ 99، مسیساگا. یا پھر کال کریں 905-828-0009. الکرم جیولرز. فرمائش آپ کی، گارنٹی ہماری. Legal problems don't wait, and neither should you. I'm Rohit Sharma. Whether you are facing criminal charges, buying your first home, or protecting your family, I'm here to help you. When your future is on the line, experience matters. At Rohit Sharma Law, we deliver results with clarity and care. At Rohit Sharma Law, we specialize in a wide range of legal services, including family law, criminal defense, real estate transactions, immigration matters, civil litigation, and notary public services. Book a consultation today. Let's take the next step together. You can call us at 416-741-1115 or email us at info@rohitlaw.ca. Experience the authentic flavors of South India at Saravanaa Pavan. From our kitchen to your table, savor a taste of tradition. Fresh, flavorful, and 100% vegetarian. Join us at Saravanaa Pavan, where every meal is a celebration. ڈکسی الیکٹرانکس اور اپلائنسز، جہاں آپ کی تمام الیکٹرانکس اور اپلائنسز کی ضروریات پوری ہوں گی. ہمارے پاس آپ کو ہر ٹاپ برانڈ موجود ملے گا، چاہے وہ ورلپول ہو یا LG، سیمسنگ ہو یا جنرل الیکٹرکس. ہم ان سب کے آتھرائز ڈیلر ہیں. آئیے اور ہم سے 5 اسٹار خدمت کا لطف اٹھائیے. ہم آپ کو تمام اپلائنسز سب سے بہتر اور سستے داموں پر فراہم کریں گے، یہ ہماری گارنٹی ہے. Visit our website www.dixieelectronics.ca یا پھر ہمیں کال کیجیے 905-625-5900. At Dixie Electronics and Appliances, we sell quality and deliver confidence. Happy day. Today is a beautiful day. Happy, happy, happy. Now jump, jump, jump. Everybody have fun, fun, fun. Everybody la, 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 la. My happy day. Sing with me, jump with me, play with me, laugh, laugh, laugh. Ha, 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 ha. Happy, 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 really, really, really happy, 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 best day in the world. Happy, 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 really, really,
really happy birthday in the world. This is the fall season. I like the colors. That is beautiful. That is colored orange, yellow, green leaves. Then there is a house in the background. I really like how the leaves look because their colors are yellow and green and red, and some of them are brown and orange. I like how the bull looks and how the tree looks. And I really like how the yellow lines look on the road and the white lines and the gray ones. It looks like it's fall, and the colors of the leaf is yellow, red, orange, and there's some leaves on the road and the trees. And I like the colors. This picture really inspires me because it has many colors and the sky is really bright. And those colors are orange, green, yellow, and red. I like this picture because the water is reflecting off the trees, and the trees have beautiful colors such as green, red, orange, yellow. Something I really like about this picture is that it's fall and the trees all look beautiful. It has the colors red, it has the colors yellow, and it also has the colors orange. The background of the picture has a lot of mountains, and the mountains it really matches the scenery of this picture, and the sky makes the picture look even better, and the houses in the bottom also match the scenery of this picture. Children love to do artwork. Today, Hussein and Shazan are having fun while mixing colors and doing painting. They enjoy hand printing the most. Hello everyone, my name is Hussein. My brother Shazan. प्यारे नाज़रीन और प्यारे बच्चों, आज हमारे तीनों मेहमानों ने कितनी खूबसूरत बातें की जिसने वाकई हमारे दिलों के रंगों में इजाफा कर दिया। ये ख्यालात, तजुर्बात और उन्होंने जिक्र किया वो बच्चों के लिए ज़िंदगी के सच्चे रंगों की मिसाल है। हमारे गेस्ट ने बताया हर इंसान के अंदर एक ख़ास रंग है, बस उनको पहचानने की ज़रूरत है। कभी मोहब्बत का सुर्ख रंग, कभी इल्म का नीला रंग और कभी उम्मीद का ज़र्द रंग। इनकी खूबसूरत बातें वाकई दिल को लगीं। दूसरों के लिए रोशनी बनना ही ज़िंदगी का असल रंग है। मैं थैंकफुल हूँ अपने गेस्ट सजिला, अनीला और फैसल साहब की कि उन्होंने आज हमारे शो में आकर एक नया रंग पैदा किया। जैसे तस्वीर में कई रंग मिलकर एक खूबसूरती पैदा करते, इन्होंने हमारे शो में खूबसूरती पैदा कर दी। और वैसे ही आप सब के ख्यालात ज़िंदगी के रंगों को मुकम्मल करने के लिए मददगार साबित होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, मैं कहना चाहूँगी कि ज़िंदगी का रंग वो नहीं जो आँखों से दिखाई देते हैं, वो है जिसे दिलों में बस जाए। और हमारी ज़िंदगी सिर्फ सांसों का नाम नहीं, ये मोहब्बत की लमस है, उम्मीद की रोशनी का नाम है, दुआ की खुशबू का रंग है। ये सब एक ब्लैक कैनवस के रंग हैं जिसमें जब हम सब अच्छा सोचते हैं तो अच्छा बोलते हैं। इस वक्त हमारे रंग जगमगाने लगते हैं। याद रखें बच्चों, नफ़रत दिल के अंधेरा है
اور محبت دین کا سورج. ہم عہد کرتے ہیں کہ محبت کی تصویر بنے, امید کا بیج بوئے اور روشنی کی طرح پھیلیں. شکر کرتے ہیں, شکر کریں, چمکے دعا کی طرح, بلند ہوں بچوں کے پیار کی طرح, اور صبح ایک نئی کہانی لے کر, ایک نیا رنگ لے کر اپنے دل میں یہ صدا رکھنی چاہیے کہ روشنی اور خوشی اور امید ہے. امید جو ہے وہ بہت ضروری ہے. ہم اپنے رب کی بہترین تخلیق ہیں. آخر میں میری دعا ہے کہ ہمارے دل روشنیوں سے جگمگائیں. یا الہی ہمارے دلوں کو خوبصورت رنگ عطا فرما دے اور میرے خیالات کو پاکیزہ کر دے, زبان کو محبت دے, ہمارے قدموں کو بھلائی کی طرف رکھ دے, اور ہم سب دوسروں کے لیے خوشیوں کے رنگ لے کر آئیں. پیارے بچوں, چمکتے رہو. دنیا تب بھی خوبصورت لگتی ہے جب آپ ہنستے ہو, آپ مسکراتے ہو. اپنے رنگوں کو کبھی بھی مان نہ ہونے دینا. اللہ حافظ. اور انشاءاللہ آپ کے ساتھ اگلی ملاقات ایک اور اچھے خوبصورت شو کے ساتھ ہو رہی ہے. اور اینڈ میں یہ کہوں گی, اور یہ کہ رنگوں میں چھپا ہے خوابوں کا جہاں, لکیروں میں دھڑکتا ہے دل کا بیان, ہر سوز کی آواز ملتی ہے فن کی عطا, یہی تو ہے زندگی کی نرم ہوا. لا 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 لا, اس گل سے نوازتی ہے اللہ کی رحمت ہے.